हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स एंड जो उसके जो स्पेशल टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है ये टॉपिक अच्छा लगेगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपका कुछ भी जो सवाल रहता है, कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के जो सवाल हैं उनके जो जवाब दे पाऊं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। So friends, let's study about the quadrilaterals. Okay, so what is a quadrilateral? A closed plane figure bounded by four line segments is called a quadrilateral. Okay, a closed plane figure bounded by four line segments, it is called a quadrilateral. So you can see this particular figure. Okay, this is a quadrilateral. Okay, in which all four sides are there: AB, BC, CD and DA, and all four corners means A, B, C and D, they are known as vertices. Okay, and AC and BD, they are known as diagonals. Okay, so friends, diagonals क्या होते हैं? What are diagonals? Okay, so the line segment joining the opposite vertices, okay, opposite vertices of a quadrilateral is known as diagonal. Okay, so in this particular figure, AC and BD, okay, these are the two diagonals. Okay, means a quadrilateral has two diagonals. Okay, and in this particular figure, AC and BD are two diagonals. And what is the other definition of a quadrilateral? So a polygon formed by four line segments is called a quadrilateral. Okay, and no three means obviously four line segments, and ABCD are the 4 points. Okay, and no three of them means A, B, C and D. So out of four, okay, no three of them are collinear, means कि जो A है, B है और C है और एक D है, इन चारों में से कोई तीन एक लाइन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे. ओके, एंड एक और उसमें क्या रहता है कि द लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड्स. ओके, एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. ओके, नाउ हियर one important line is written: sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means that कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 degree. Okay, means this angle, this angle, this angle and this angle. Okay, all four angles, the sum of all these four angles, okay, of a quadrilateral is 360 degree. Okay, and this is known as the angle sum property of a triangle. This is known as the angle sum property of a quadrilateral, angle sum property of a quadrilateral. Okay friends, so the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, so friends, let's study about the some special type of quadrilaterals. Some special type of quadrilaterals. Okay, so as you told you in the introduction part that there are some special kind of quadrilaterals. For example, trapezium, parallelogram, square, rhombus. Okay, then rectangle, and other one extra special means something special is the kite. Okay, kite is also a type of a quadrilateral. Okay, so let's study one by one. So in this particular table, okay, you people can see that. Okay, so quadrilaterals especially they can be divided into three: trapezium, kite and parallelogram. Okay, so again, if the two sides, okay, means two non-parallel sides of a trapezium is equal, okay, equal, then it is known as isosceles trapezium. Okay, so we will study about the trapezium, okay, in this particular video. So not to worry about this. Okay,
एंड और कौन कौन से हमारे पास हैं कि पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में भी आगे स्पेशल क्या है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ओके, सो एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास है ट्रेपीजियम। ओके, तो ट्रेपीजियम क्या है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides is parallel, okay, but the other pair of opposite sides is non parallel। okay, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों क्या पैरेलल साइड्स हैं, और जो इधर वाली साइड है और ये इधर वाली साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर ए बी एंड डी सी, ओके, और सी डी इज पैरेलल टू ईच अदर, एंड ए डी एंड बी सी दैट इज द नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, सो this particular figure means this figure is a trapezium, okay, and if non-parallel sides, if non-parallel sides are equal means कि जो ए डी जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ओके, और उस केस में क्या होगा हमारे पास कि एंगल जो डी होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए जो होगा वो भी एंगल बी के इक्वल होगा। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप का जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है दैट इज पैरेललोग्राम। सो नेक्स्ट टाइप जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, सो ए पैरेललोग्राम, व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? सो ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस पर्टिकुलर फिगर में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, ए बी ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल है, और दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल। ओके, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और क्या हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो अपोजिट हमारे पास साइड्स हैं वो भी पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। और इसमें क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, देन हियर वन वर्ड इज रिटन सप्लीमेंट्री। अभी सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? तो सप्लीमेंट्री का जो मतलब है कि जो एंगल्स, दो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा, और यहीं पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता है तो उसका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें जो कंजेक्टिव एंगल्स हैं, ओके, कंजेक्टिव जो एंगल्स हैं यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी जो कंजेक्टिव एंगल है, या फिर एंगल ए एंगल डी कंजेक्टिव है, या बी या सी कंजेक्टिव, तो इस हिसाब से क्या है, ये जो कंजेक्टिव एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। और क्या है, जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं, मीन्स कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, और क्या लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू हाफ ए सी और ओ सी इक्वल टू हाफ ए सी, ऐसे ही ओ बी इक्वल टू जो है ओ डी। और जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसके जो डायगोनल्स हैं उसको दो जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, और ऐसे ही 4 जो है ऐसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया इक्वल होता है, मीन्स 1 2 3 4। ओके, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं, पैरेललोग्राम की हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ओके, सो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल जो है वो भी एक टाइप का जो है वो पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि रेक्टेंगल जो है वो स्पेशल हमारे पास एक टाइप का पैरेललोग्राम है। मतलब क्या है कि इसमें जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैलिड होंगी। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी वो वैलिड होंगी। और फ्रेंड्स जो है, इससे पहले मैं आपको एक जो है मतलब और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम जो है वो कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रूव दैट कि सपोज दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, तो उसमें आपको क्या, आइदर आप प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और क्या प्रूव कर सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्या प्रूव कर सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कुछ भी इनमें से प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो रेक्टेंगल क्या है, इट इज़ ए पैरेललोग्राम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल? मतलब कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हैं, बट और क्या एडिशनल जो प्रॉपर्टीज हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल्स जो थे
डायगोनल्स क्या करते थे, बाइसेक्ट ईच अदर थे, बट दे वर नॉट इक्वल। हियर डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब रेक्टेंगल में क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी। बाकी तो पैरेललोग्राम में भी हमारे पास क्या थे कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते थे, यहाँ पे भी करते हैं। देन उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स ओके दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। ओके, ऑल आर राइट एंगल्स। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस, सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इट इज ए पैरेललोग्राम। अब देखते हैं कि इसमें मतलब जो पैरेललोग्राम है उससे और क्या एडिशनल जो प्रॉपर्टीज हैं। सो पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये सारी की सारी जो साइड्स हैं ये सब के सब साइड्स इक्वल हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट एक एडिशनल इसमें क्या है, एट 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसमें क्या है, 4 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं। इसमें हमारे पास 4 क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, और इसमें एक एडिशनल और क्या फीचर है कि ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट वर्टिसेस, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल्स बने हुए हैं ये, तो इसमें जो डायगोनल्स हैं ये इनको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये एंगल जो ए है, तो एंगल ए को ये एंगल a/2 और एंगल a/2 मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही बी को करेंगे, ऐसे सी को करेंगे, ऐसे ही डी को करेंगे। ओके, तो ये सब जो है अदर देन जो पैरेललोग्राम हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं कि ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ, मतलब जो है वो जो एंगल्स जो वर्टिसेस पे एंगल्स बने हैं उनको वो बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है दैट इज स्क्वायर। ओके, सो अब स्क्वायर क्या है, इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बट नाउ व्हाट इज द अदर फीचर्स, ओके, अदर देन द पैरेललोग्राम। तो इसमें और कौन से हमारे पास एडिशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमारे पास जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जो जैसे कि रोम्बस था, रोम्बस में अगर देखें, रोम्बस में और स्क्वायर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टिसेस। तो अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में भी क्या था, ऑल साइड्स हमारे पास जो था वो इक्वल था। रोम्बस में जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री नहीं थे, रोम्बस में डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं थे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जी रोम्बस में वैलिड थी, ये वाली प्रॉपर्टी भी, यानी कि ये जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं ये ओनली और स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, और उसके अलावा किस में है, रेक्टेंगल में। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं ये किस में है और किस में आती हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी आती हैं। ठीक है, कि ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में क्या ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज यानी कि स्क्वायर की हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे सभी 90 डिग्री होगा। और इवन जो हमारे पास ये जो डायगोनल्स हैं ये भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे। और ऐसे ही जो हमारे पास ये एंगल्स को जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इधर, मतलब जो है इधर भी इक्वल, सपोज कि अगर इसको 1 और 2 लिखते हैं तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो ये सारी जो फीचर्स हैं किसकी हैं, ये सब फीचर्स जो हैं वो स्क्वायर की हैं। And finally the special type of quadrilateral, it is a kite. Okay, so kite, what is a kite? So a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal but the opposite sides are unequal is called a kite. Okay, तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं इनको जो मतलब बिल्कुल साथ वाली साइड्स, ठीक है, जैसे एडजेसेंट एंगल के बोलेंगे तो बिल्कुल जो नेक्स्ट हमारे पास एंगल होगा, जैसे सपोज कि एंगल ए है, ठीक है, और अगर एंगल ए के बाद अगर हम देखें तो एंगल ए के बाद जो नेक्स्ट इसका एंगल होगा, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल यहाँ पे डी भी हो सकता है, एंगल डी, तो ये एडजेसेंट होंगे। साइड्स में क्या होगा कि सपोज ये जो ये साइड है ए बी, और ए बी के जस्ट एडजेसेंट में क्या होगा, बी सी। ठीक है, तो एडजेसेंट जो साइड होगा, एडजेसेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कॉमन, हमारे पास ये ध्यान रखना है कि कॉमन जो वर्टिसेस शेयर करने चाहिए उनको ही हम एडजेसेंट बोल पाएंगे। ऐसे ही
ये जो इधर से AD और इधर से जो है CD, ओके, दिस टू साइड्स आर एडजेसेंट, ओके। तो काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं, ओके, दे आर इक्वल, ओके। और देखते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या एडिशनल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसके अंदर, और जो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट। सो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जो कि हमने पहले देख लिया। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ओनली वन पेयर, जैसे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C इन इस पर्टिकुलर जो डायग्राम अभी देख रहे थे उसमें। देन डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि डायगनल्स जो है वो 90 यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ठीक है। देन वन ऑफ द डायगनल्स इज बाइसेक्टेड बाय द अदर, तो इसमें देख सकते हैं कि डायगनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देन वन ऑफ द डायगनल्स डिवाइड द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे ABD, हमारे पास ABD और इधर से अगर देखें तो BCD, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। यानी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। देन वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द काइट, ओके, मतलब एंगल B एंड एंगल D, ये देखो एंगल B एंड एंगल D को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो काइट की हैं, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चाहे वो ट्रेपीजियम से लेके आपका स्क्वायर, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड काइट, ओके, जो भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी आपको मतलब लगता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको कुछ या ऐसा कुछ एडिशनल आपको जानना है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलरली वीडियो है ये आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा, और आप जो है इस वीडियो को पूरा देख के और जो है वो बेनिफिट उठाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।